So we are starting with supplement of for CS executive for December 2021 examination, particularly all the amendments which has been made from January 21 to May 21, and that is applicable for December 21 exam, because as per the recent notification which have been issued by ICSI, the amendment cutoff date is basically for December exam, the cutoff date is May, and for June exam the cutoff date is previous November. So all the amendment which has been made till May is applicable for December exam, and all the amendment which has been made till 30th of November will be applicable for June exam. So we are starting with all the amendments pertaining to Companies Act, which is of CS Executive, that is your paper 2. Now बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेने का, ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है except in two chapter. One is CSR and second is in the directors chapter pertaining to schedule 5. So these are the two major amendment, though there are some minor amendment which we are going to cover. So we are going to discuss all the relevant amendment which is applicable for CS Executive December 2021 exam pertaining to company law subject. So the first change is basically of chapter Introduction to Company Law, और इसमें जो फर्स्ट मेजर चेंज है वो है डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी. So what is being said that the definition of small company has been changed, and the paid up capital and the turnover of small companies shall not exceed 2 crores and 20 crores respectively. So the definition of small company has been changed, whereby the limit of paid up capital and turnover have increased. So earlier the limit was 50 lakhs with respect to paid up share capital, so that has been increased from 50 lakhs to 2 crores, and the turnover which was earlier 2 crores that has been increased to 20 crores. So this is basically an effort being given in order to facilitate the functioning of small company, to make their ease of doing business. So the small company limit has been revised. Now what is being said, so the revised definition, how this entire revised definition look like. So it says that small company means a company other than a public company. So a small company is a company which is not a public company, so it's a type of private company whose paid up share capital does not exceed 2 crores or such higher amount as may prescribe, which shall not be more than 10 crore rupees. Now earlier in place of 2 crores it was 50 lakhs, which has been now increased to 2 crores. So the paid up capital of small company is maximum 2 crores, which can be extended. Central government by rules, they can by amendment they can always increase the paid up share capital, and that is where they can increase from 2 crores, it can go up to 10 crores. So the maximum cap is 10 crores, and the turnover, so the turnover of which as per profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 20 crores. Now earlier this limit was 2 crores, which has now been made to 20 crores or such higher amount as may prescribe, which shall not be more than 100 crores rupees. इसका मतलब द मैक्सिमम कैप, मैक्सिमम सीलिंग जहाँ तक स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल या टर्नओवर इंक्रीज किया जा सकता है वो 10 करोड़ एंड 100 करोड़ तक है. सो द करेंटली द लिमिट हैज़ बीन स्टॉप अप टू 2 करोड़ एंड 20 करोड़, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई. तो ये जो पूरा स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट है ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी पे. कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, मतलब जितने भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, नॉट दोज एंटिटीज आर गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा. सो जितना भी हम लोग हाईलाइटेड पार्ट पढ़ेंगे ना उतना आपको इस अमेंडमेंट में से पढ़ लेना है, बस उतना भी अगर आपने पढ़ लिया
it's more than sufficient. So the first major amendment which is there is basically the definition of small company. Clear? So this is first thing, and this is effective from 1st April 2021. Clear? Now this is the first amendment. Second, now the second amendment is with respect to the right issue of shares. So in first chapter that was the major amendment. In second amendment it is the right issue of share. Now right issue जब भी कंपनी करती है तो उनको under section 62(1)(a) they have to give a offer period, and offer period कितना दिया है? Minimum 15 days, maximum 30 days. So in respect to that, what has been said that afterward not less than 15 days. Now what has been said, so the not less than 15 days, the word or such lesser number of days as may prescribe has been inserted. इसका मतलब कि राइट इशू का जो ऑफर पीरियड है वो 15 डेज या लेस देन 15 डेज हो सकता है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है? सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहता है कि कंपनी राइट इशू के टाइम पीरियड को कम किया जाए, जिससे कि मिनिमम ऑफर पीरियड इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी 15 डेज, इट कैन बी लेसर देन 15 डेज. अगर ये टाइमलाइंस 15 डेज से कम होता है विच कैन नॉट बी लेस देन 7 डेज, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो राइट इशू कंप्लीट करने का पूरा टाइम फ्रेम है वो काफ़ी कम हो जाएगा. नाउ what is being said that again in continuation of the first, it says that for the purpose of 62(1)(a)(1), the time period with which the offer shall be made for acceptance shall not be less than 7 days from the date of offer. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब राइट इशू का टाइम पीरियड 15 डेज से कम हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितने दिन का रहेगा? 7 डेज का. तो इसका मतलब what has been said that the amendment prescribes the minimum time period for which the offer for further issue of shares to existing shareholder for acceptance to be kept open, which shall not be less than 7 days from the date of offer. इसका मतलब अगर हम लोग इसकी combined reading करते हैं, so what is the combined reading का इफेक्ट क्या है? combined reading का इफेक्ट ये है कि कंपनी राइट इशू में जो पहले टाइमलाइंस 15 डेज था उससे कम रख सकता है, लेकिन मिनिमम ऑफर पीरियड राइट इशू कितने दिन का होना चाहिए? कम से कम 7 डेज का. क्लियर? नाउ what is being said that this is the major amendment. Now इस amendment का जो effective date है वो January 22, 2021 है. Clear? So precisely the combined reading of this two amendment क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि राइट इशू का मिनिमम ऑफर पीरियड 15 डेज या इससे कम हो सकता है, लेकिन किससे कम नहीं हो सकता? कैन नॉट बी लेस देन 7 डेज. सो दिस इज द मेजर अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइमलाइंस ऑफ राइट इशू. तो राइट इशू का जो बेसिक टाइमलाइंस है, मतलब अगर मैं इन दोनों अमेंडमेंट को समराइज फॉर्म में बताऊं तो यहाँ पे राइट इशू ऑफर पीरियड मिनिमम, अगर हम लोग एक्ट देखते हैं तो कितना है? मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज. लेकिन ये 15 से कम हो सकता है, लेकिन कम होके कहाँ तक हो सकता है? तो यहाँ पे कैन बी लेस देन 15 डेज, बट 7 डेज से कम नहीं हो सकता, बट कैन नॉट बी लेस देन 7 डेज. तो यहाँ पे कैन नॉट बी लेस देन 7 days. Clear?
now what is being said, this is your entire amendment with respect to the major amendment with respect to the share capital chapter. Now अब यहाँ पे what is being said that with respect to the membership chapter, now there is something called section 89 which talks about declaration of beneficial interest. Now whereby what is being said that now new subsection 11 being provided. अच्छा ये new subsection 11 में क्या बोला गया है, has been inserted which enables the central government to exempt any class of company from complying with any of the requirement of this section pertaining to declaration of in respect of beneficial interest in any shares. मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी क्लास ऑफ कंपनी को डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशियल शेयर्स के प्रोविजन से अगर एग्जाम्पशन देना चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑलवेज प्रोवाइड द सेम इफ इट इज कंसिडर्ड नेसेसरी to grant such exemption in public interest, and such exemption may be granted either unconditionally or subject to such condition as provide. इसका मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी को पूरे के पूरे सेक्शन 89 से एग्जाम्पशन देना चाहता है एक्सेप्ट 89(10) तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट. क्लियर? प्रिसाइसली व्हाट दे आर सेइंग, अ वेरी सिंपल पार्ट कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो सेक्शन 89 की एप्लीकेबिलिटी से कंपनी को एग्जाम्पशन दे सकता है इफ दैट एग्जाम्पशन इज वेरी मच क्रूशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट. नॉट वेरी मेजर अमेंडमेंट. अब देखो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिविडेंड चैप्टर में प्राइमा फेसी सिर्फ एक अमेंडमेंट है और वो भी पेनल्टी का अमेंडमेंट है. तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड कि जो सेक्शन 124 की पेनल्टी है. Now what is section 124? Now 124 में there is something called unpaid unclaimed dividend account open होता है. तो यहाँ पे unpaid unclaimed dividend जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है within 7 days after the expiry of 30 days. तो सेक्शन 124 की पेनल्टी में चेंज किया गया है. Now what is being said that जो न्यू पेनल्टी है वो क्या बोलता है that if the company fails to comply with the requirement section 124, then such company shall be liable for penalty of 1 lakh rupee, and in case of continuing failure with further penalty of 500 rupees for every day after the first day during which the failure continues, subject to maximum of 10 lakh rupees. तो यहाँ पे what is being said that ये जो penalty का amendment हुआ है this is by virtue of Companies Amendment Act 2020 and ये effective हुआ 24 मार्च 2021 से. तो यहाँ पे सिर्फ पेनल्टी को चेंज किया गया है एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर with further fine of 100 rupees for every day after the first day during which the failure continues subject to maximum of 2 lakh rupees. So सिर्फ पेनल्टी के प्रोविजन चेंज हुआ है, रेस्ट एंटायर प्रोविजन एंड द चैप्टर रिमेन्स द सेम इन केस ऑफ डिविडेंड पार्ट. नाउ तो पेनल्टी को थोड़ा ज़्यादा रैशनलाइज किया गया है जिससे कि सेक्शन के कंप्लायंस को एनफोर्स किया सके. सो दिस इज समथिंग इज द अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 124. क्लियर? सो यू जस्ट नीड टू रीड द न्यू प्रोविजन विच इज पर्टेनिंग टू पेनल्टी. Now what is being said that अब यहाँ पे CSR. Now this is a very crucial chapter जहाँ पे major amendment हुए हैं with respect to CSR expenditure, with respect to CSR की enforceability के लिए, with respect to carrying forward the CSR amount. ये एक part है जिसमें major change हुआ है. अब देखो ये है क्या. Now this is something, now what has been specified that clarification on the spending of CSR fund for awareness and public outrage on COVID-19 vaccination program. अब ये है क्या?
Now, as we know that COVID has affected everyone's life, now a pandemic which has not only affected India but the global front. तो यहाँ पे MCA ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, कॉर्पोरेट्स ने जिन्होंने जो CSR का फंड था, उन्होंने अगर कोविड की अवेयरनेस के लिए, वैक्सीनेशन अवेयरनेस के लिए, वैक्सीनेशन ड्राइव की तरफ कुछ भी खर्चा किया है तो उसको CSR एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर दिया. तो क्या लिखा है? इन कंटिन्यूएशन to MCA General Circular 2020 dated March 23, 2020, where it was clarified that spending of CSR fund for COVID is an eligible CSR activity. It is further clarified that spending of CSR fund for carrying out awareness campaign program or public outreach campaign on COVID-19 vaccination program is an eligible CSR activity, which means that relating to promotion of healthcare, including preventive healthcare, sanitization, promoting education and disaster management respectively. इसका मतलब क्या हुआ? Now there is something that अगर हमें पैंडमिक से बचना है, ना इंडिया में फर्स्ट वेव आया, आफ्टर दैट वी रियलाइज, वी फेल्ट दैट हम लोग एकदम सेफ हो चुके हैं, वी बिकेम वेरी केयरलेस, and that is where India has experienced a worst ever second wave, where we have lost our loved ones, the hospitalization, the hospital healthcare has collapsed precisely. And that is not a situation in India. You can find this situation in a lot of developed countries like Germany, Singapore, where healthcare is considered to be the best across the world. They have also, the system has collapsed because the amount with which it the amount with which it creates the burden on the healthcare system is precisely unmatchable. And that is where इसको बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या जरूरी है, that we have to get the population vaccinated as early as possible. But it has been realized that in lot of countries there has been an outrage, rather to say there has been a protest that they don't want to go for vaccination. Until the time we are not getting vaccinated, we are not completely safe. It is not the case that after vaccination you will not get affected, but the magnitude of problem will always be on a lesser side. And that is where it is very important to create awareness about the vaccination drive, why vaccination is important, it is not having any side effect, and that type of awareness need to be created. And अगर एक corporate इस awareness को create करने के लिए अगर कुछ भी खर्चा करता है, then that is again forming part of CSR expenditure. Clear? So this is something has been specified with effect from January 13, 2021. तो यहाँ पे ये एक मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट है with respect to CSR expenditure की तरफ. Now what is being said, second thing है, now यहाँ पे अब CSR के जो provisions हैं, now when we talk about CSR provision, it is something we are talking about that all the provisions which has been incorporated under Companies Act with respect to the CSR spending. अब देखो अब इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, विद एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, बिकॉज दैट इज वेरी क्रूशल. अब यहाँ पे क्या दिया है नाउ, अब यहाँ पे सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 विच टॉक्स अबाउट CSR एक्सपेंडिचर. अब उसमें क्या बोला है, लेट्स सी दिस थिंग. इसमें क्या लिखा है, नाउ इट सेज दैट section 135 subsection 5 provides that board of every company referred to in section 135 subsection 1. तो 135 subsection 1 बेसिकली बोलता है वो कंपनीज जिनके ऊपर CSR एप्लीकेबल होता है, shall ensure that companies spend in every financial year at least 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year, or very important, or where the company has not completed the period of 3 financial years since its incorporation during such immediately preceding financial year in pursuance of CSR policy. अब देखो, provided that the company shall give preference to the local area and area around it where it operates for spending the amount earmarked for CSR activity. मतलब कंपनी अपने लोकल एरिया को प्रेफरेंस दे सकता है while making CSR expenditure. फर्दर क्या लिखा है,
provided further that if the company fails to spend the amount, the board shall in its report made under section 134.30 is required to specify the reason for not spending the amount and what is important. सी पहले क्या होता था कि आपने सिर्फ रीजन बताते कि भाई हम लोग नहीं खर्चा कर पाए, लेकिन उसके बाद क्या, तो उसको स्पेसिफाई किया अंडर दिस सेक्शन. And unless the unspent amount related to any ongoing project referred to in 135.6, transfer such unspent amount to the fund specified in Schedule 7 within a period of 6 months from the expiry of the financial year. Clear? Now this is something is a crucial part. अब I want all of you कि आप लोग ये जो पूरा पार्ट है इसको एक बार रीड करिए. जितने लोग वीडियो में देख रहे हैं वो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके बार रीड करिए, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू टेक एंड एक्सप्लेन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आल्सो. सो रीड दिस पार्ट फर्स्ट. सो आई बिलीव आप लोगों ने रीड किया है. अब देखिए, अब यहाँ पे इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं. नाउ व्हाट हैज बीन सेड, नाउ विद रिस्पेक्ट टू now this entire amendment relating to CSR under Companies Amendment Act 19 came into force on 22nd January 2021. अब यह अमेंडमेंट क्या बोलता है? नाउ अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है. नाउ एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी कवर्ड 135(1) मतलब वो कंपनीज जिनके ऊपर CSR एप्लीकेबल है shall ensure that companies spend in every financial year at least 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year. मतलब कंपनी ने लास्ट 3 साल जो प्रॉफिट कमाया उसका एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज का 2%. और वेयर द कंपनी हैज़ नॉट कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, तो अगर कंपनी ने 3 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं किया है since incorporation during such immediately preceding financial year in pursuance of its CSR policy, मतलब कंपनी की जो CSR पॉलिसी है अगर कंपनी का 3 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो कंपनी का CSR पॉलिसी के हिसाब से मान लो 2 फाइनेंशियल ईयर हुआ है तो 2 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा उसका 2%. सो अगर एक ही साल हुआ है तो वहाँ पे लास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट का 2%. प्रिसाइसली व्हाट दे आर सेइंग दैट इट 9 ऑफ CSR पॉलिसी. So what is being said that that the board of every company referring 135(1) shall ensure the company spend in every financial year at least 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year, or where the company has not completed the period of 3 financial years since its incorporation during such immediately preceding financial year in pursuance of CSR policy. अब देखो, अब यहाँ पे मान लेते हैं कंपनी का इंकॉर्पोरेशन हुआ है 2016-17 में. क्लियर? अब 16-17 में कंपनी का नेटवर्थ था 400 करोड़, टर्नओवर 800 करोड़, नेट प्रॉफिट 3 करोड़. तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 16-17 में कंपनी के ऊपर CSR एप्लीकेबल नहीं हुआ तो 135 अप्लाइज. आंसर इज नो. अब 17-18 में फाइनेंशियल 17-18 में कंपनी का नेटवर्थ है 450 करोड़, कंपनी का टर्नओवर हो गया 1200 करोड़, कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया 6 करोड़. अब अगर 135 सबसेक्शन 1 हम लोग देखते हैं तो 135(1) में व्हेन द CSR विल बिकम एप्लीकेबल, द एप्लीकेबिलिटी 135 की एप्लीकेबिलिटी क्या है कि अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर है, तो आपके ऊपर CSR एप्लीकेबल हो जाता है. नाउ दैट इज बीइंग गिवन under section 135 subsection 1. The company having net worth of 500 crores or more, company having turnover of 1000 crores or more, और company having net profit of 5 crores or more. तो यहाँ पे what is being said कि यहाँ पे कंपनी के ऊपर CSR एप्लीकेबल हो गया. अब एक बार का सेक्शन एप्लीकेबल हो गया then it remains to be applicable for the next 3 years. अब यहाँ पे नेक्स्ट ईयर कंपनी का नेटवर्थ है 475 करोड़, टर्नओवर है 900 करोड़, नेट प्रॉफिट है 4 करोड़. तो CSR की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको CSR का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा बिकॉज एक बार सेक्शन एप्लीकेबल हुआ देन कंपनी को
नेक्स्ट 3 ईयर्स तक सेक्शन का अप्लाई करना पड़ेगा। अब 1920 में कंपनी का नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट दिया है। अगेन 2021 में कंपनी का नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट दिया है। सो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे क्योंकि 135(1) एप्लीकेबल हो रहा है एंड हो रहा है, तो एक बार सेक्शन एप्लीकेबल हो गया तो इट रिमेन्स टू बी एप्लीकेबल फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अब देखो, तो क्वेश्चन ये है कि कंपनी को 2021 में CSR एक्सपेंडिचर कितना करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2021 देखता हूँ तो कंपनी का लास्ट 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट निकालने का उसका 2%। तो 2021 में कंपनी को कितना CSR करना है। सो नेट प्रॉफिट, तो एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 1920, 1819 एंड 1718, तो यहाँ पे 2% ऑफ 10 करोड़, 4 करोड़ एंड 6 करोड़। तो यहाँ पे लास्ट 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट निकाल लिया, उसका 2%, सो इट इज़ कमिंग टू 13,33,334। अब कंपनी को 1920 में कितना CSR करना है, तो लास्ट 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट निकाल लो, उसका 2%। तो लास्ट 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 6 करोड़ प्लस 4 करोड़ प्लस 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 3, सो इट इज़ कमिंग टू 8,66,666.66, मतलब कितना आ जाएगा, 8,66,667। अब अगर कंपनी को CSR करना है 18-19 में, तो लास्ट 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट निकाल जाए, लेकिन यहाँ तो 3 साल हुआ ही नहीं है, तो वहाँ पे एज पर CSR पॉलिसी के हिसाब से जो भी एवरेज प्रॉफिट आ रहा है लास्ट 2 ईयर्स का, उसका 2%। तो 6 पर 6 CR प्लस 3 CR डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये कितना आ गया, so it is 9 lakhs. That is the amount that company have to spend towards CSR. Clear? अब देखो ना, यहाँ पे कंपनी के पास ना प्रोवाइजो क्या बोलता है, ना प्रोवाइजो सेज ना प्रोवाइडेड दैट कंपनी शैल गिव प्रेफरेंस टू लोकल एरिया। तो कंपनी लोकल एरिया को प्रेफरेंस दे सकता है एंड एरियाज अराउंड इट वेयर इट ऑपरेट फॉर स्पेंडिंग द CS अमाउंट अर्नमार्क, मतलब जो CSR फंड निकाल के रखा गया है फॉर CSR एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द कंपनी शैल गिव प्रेफरेंस टू लोकल एरिया एंड एरियाज अराउंड इट वेयर इट ऑपरेट फॉर स्पेंडिंग द अमाउंट रिजर्व फॉर CSR एक्टिविटी। क्लियर? अब फर्दर क्या दिया है, नाउ इफ कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट, सेकेंड प्रोवाइजो क्या बोलता है, that अगर कंपनी प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट, तो जो 135(5) में आया है उस पैसे को खर्चा नहीं कर पाता, एंड अदर देन द मनी रिलेट्स टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल ख़त्म होने के 6 मंथ्स के अंदर इस पैसे को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र टू द फंड स्पेसिफाइड इन Schedule 7। तो यहाँ पे क्या लिखा है, it says that if the company fails to spend such amount, now the board in the directors board shall specify the reason for not spending. That is one thing they have to do. And unless the unspent amount related to an ongoing project, अगर unspent amount ongoing project से connected है तो अलग बात है। Now transfer such amount, unspent amount को क्या करना पड़ेगा, it need to be transferred to a fund specified in Schedule 7 within a period of 6 months of the expiry of financial year। अब देखो, तो हम लोगों ने जो ऊपर फर्स्ट पॉइंट में एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी को CSR में कितना खर्चा करना है, 13,33,334। अब कंपनी ने स्पेंड किया, तो फंड स्पेंड बाय फॉर CSR प्रोजेक्ट मान लो कंपनी ने 10 लाख रुपए स्पेंड किया, तो कंपनी का अनस्पेंड अमाउंट कितना आ गया, 3,33,334। तो अभी जो CSR प्रोजेक्ट है, अगर ये नॉट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, मतलब ये जो 3,33,334 जो बचा हुआ पैसा है, अगर कंपनी CSR प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो कि नॉन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, अभी हम लोग पहले फोकस कर रहे हैं नॉन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पे, तो अगर नॉन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे ये जो पैसा बचा हुआ है, सो अनस्पेंड अमाउंट नीड टू बी ट्रांसफर टू द फंड स्पेसिफाइड अंडर Schedule 7 कितने दिन के अंदर, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? सो ये जो पार्ट है
this is your 135 subsection 5 second proviso. Clear? So this entire thing is the example which will help you to understand. तो यहाँ पे ये जो 3,33,334 है, now that need to be transferred to schedule 7. अब देखो, this is your amendment pertaining to 135 subsection 5. अब देखिए, अब आता है 135 subsection 6. अब 135 subsection 6 क्या बोलता है? Now 135 subsection 6 says that any amount remaining unspent under 135 subsection 5, तो अगर कोई भी पैसा बचा हुआ है 135 subsection 5 का, pertaining to an ongoing project, fulfilling such condition as may prescribe, undertaken by the company in pursuance of CSR policy, shall be transferred the company within a period of 30 days from the end of financial year to a special account to be opened by the company in that behalf for that financial year in any scheduled bank. तो अगर जो अनस्पेंड अमाउंट बचा है दैट इज बेसिकली इन रिलेशन टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए तरफ अगर बचा हुआ है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को फाइनेंशियल ख़त्म होने के 30 डेज के अंदर एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. एंड जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अच्छा ये स्पेड्यूल कमर्शियल बैंक में आप अकाउंट ओपन करोगे, टू बी कॉल्ड द अनस्पेंड कॉर्पोरेट CSR अकाउंट, and such amount shall be spent by the company in pursuance of obligation towards CSR policy within a period of 3 financial year. मतलब इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इस पैसे को यूज़ किया जाएगा 3 फाइनेंशियल ईयर में from the date of transfer, failing which the company shall transfer the same to the fund specified in schedule 7 within a period of 30 days from the date of completion of 3 financial year. मतलब 3 फाइनेंशियल ख़त्म होने के बाद अगले 30 दिन के अंदर इस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फंड में, ट्रांसफ़र टू द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7. अब देखो, अब ये अनदर चेंज है विच इज़ पर्टेनिंग टू 135 सबसेक्शन 6. तो अभी उन्होंने 135 सबसेक्शन 5 समझा विद एग्जांपल. नाउ विल बी टेकिंग 135 सबसेक्शन 6 विद एग्जांपल, बट बिफोर दैट रीड दिस एंटायर हाईलाइटेड पार्ट. क्लियर? और जितने लोग वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो को यहाँ पॉज करिए और इसको एक बार रीड करिए. सो आई बिलीव ये आपने रीड किया है. आप देखिए, अब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 6, नाउ एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड. अब ये जो पूरा पार्ट है, नाउ दिस इज समथिंग दैट एनी अमाउंट remaining unspent under section 135 subsection 5 pursuant to any ongoing project undertaken by the company in pursuance of CSR policy shall be transferred by the company within a period of 30 days from the end of financial year to a special account to be opened by the company in that behalf for that financial year in any scheduled bank. जो भी उन्होंने पढ़ा था कि एक scheduled बैंक में एक अकाउंट ओपन किया जाएगा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, called as unspent CSR account, एंड उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे और इस पैसे को यूज़ किया जाएगा 3 ईयर्स के अंदर. 3 साल में नहीं यूज़ हुआ तो फिर 3 साल ख़त्म होने के बाद 30 दिन के अंदर आप इसको ट्रांसफ़र कर दोगे टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, एंड सच अमाउंट शैल बी स्पेंड बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स CSR पॉलिसी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र, फेलिंग विच द कंपनी शैल ट्रांसफ़र द सेम टू द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 within 30 days from the date of completion of 3rd financial year. अब देखो, तो यहाँ पे हम लोग ने इन द प्रीवियस एग्जांपल व्हाट वी डिस्कस कि कंपनी का CSR आ रहा था 13,33,000, उसमें कंपनी ने खर्चा किया 10 लाख रुपए, तो 3,33,334 बच गया. इस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो फाइनेंशियल ख़त्म होने के 6 मंथ्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे फंड को. और अगर ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है, सो नीड नॉट टू बी ट्रांसफर टू द फंड स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 6, मतलब इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं करना है, उसको क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा. सो यहाँ पे तो जो अनस्पेंट है, तो CSR एक्सपेंडिचर 13,33,000, खर्चा किया 10 लाख रुपए,
तो बचा कितना 3,33,334 ये बचा हुआ पैसा है। तो नॉन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब यहाँ पे अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो तो इसको फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, अनस्पेंड अमाउंट नीड टू बी ट्रांसफर टू अनस्पेंड CSR अकाउंट कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 30 डेज के अंदर दिस अनस्पेंड अमाउंट नीड टू बी दिस अनस्पेंड अमाउंट जो है एक अकाउंट ओपन करेंगे अनस्पेंड CSR अकाउंट और उसमें इस पैसे को ट्रांसफ़र किया जाएगा 30 डेज के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एंड इस पैसे को यूटिलाइज किया जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर्स में, और 3 साल में यूज़ नहीं कर पाए तो फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा विद द तो नीड टू बी ट्रांसफर टू द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 3 फाइनेंशियल ईयर के बाद 30 दिन के अंदर इसको फंड को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब देखो अब आगे क्या दिया है। नाउ इट सेज दैट ना यहाँ पे what is being said, so this is your 135 subsection 6। now यहाँ पे अब एक पेनल्टी को लाया गया है कि अगर आप 135(5) और 135(6) के कंडीशन को कंप्लाई नहीं करते हो तो पेनल्टी आएगा, एंड दैट पेनल्टी विल बी एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 7। तो यहाँ पे क्या लिखा है now यहाँ पे द अमेंडेड 135 सबसेक्शन 7 इज एज अंडर। क्या लिखा है, इफ अ कंपनी इज डिफॉल्ट इन कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6, मतलब अगर 135(5) और 135(6) का कंप्लायंस नहीं हुआ, द कंपनी shall be liable to penalty of twice the amount required to be transferred by the company to the fund। मतलब जो पैसा ट्रांसफ़र करना था फंड को या तो अनस्पेंड CSR अमाउंट अकाउंट में उसका ट्वाइस और 1 करोड़ विच एवर इज लेसर, ये कंपनी के ऊपर पेनल्टी है। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पेनल्टी ऑफ 1/10 ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर द कंपनी टू सच फंड और अनस्पेंड CSR अकाउंट। मतलब एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर कितनी पेनल्टी है कि जो पैसा ट्रांसफ़र करना था फंड में या तो अनस्पेंड CSR अकाउंट, डिपेंड अपॉन कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है या नॉन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उसका 10% और 2 लाख रुपीज़ विच एवर इज लेसर। नाउ यहाँ पे so this is the penalty part now which can be presented in a little simpler manner in this manner that penalty क्या है 135(7) क्या बोलता है that if company fails to comply the requirement 135(5) or 135(6) then it is considered as default and penalty shall be levied। किस पे penalty लग रही है, कंपनी पे, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे। तो twice the amount required to be transferred to the fund स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, ये कब होगा, जब नॉन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होगा। और अनस्पेंड CSR अकाउंट, तो जो अनस्पेंड CSR अकाउंट जो पैसा ट्रांसफर करना था उसका 2 गुना अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, और 1 करोड़ विच एवर इज लेसर। एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1/10 मतलब 10% आएगा ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द फंड अगर नॉन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, और अनस्पेंड CSR अकाउंट अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसका 10% और 2 लाख विच एवर इज लेसर। क्लियर। तो हम लोग जब नॉन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट 135 सबसेक्शन 5, और जब हम लोग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट 135 सबसेक्शन 6। क्लियर। नाउ सो दिस इज समथिंग व्हाट हैव टू बी स्टडीड। अब यहाँ पे 135 सबसेक्शन नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट 135 सबसेक्शन 8 में नहीं क्या लिखा है, अच्छा इसमें 135 सबसेक्शन 8 में द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड
to give such general and special direction to the company or class of company as considered necessary to ensure compliance of section 135 and such class of company shall comply with such direction। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्शन दे सकता है क्लास ऑफ कंपनीज को एंड उन क्लास ऑफ कंपनीज को इन डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा 135 सबसेक्शन 5 में एक और प्रोवाइजो ऐड किया गया, नो सेट ऑफ एक्सेस spending on CSR. So it says that provided that if the company spend an amount in excess of requirement provided in 130 subsection, मतलब 135(5) में जो खर्चा करना था उससे ज़्यादा खर्चा कर दिया, then such company shall be may set off such excess amount against the requirement to spend against this subsection for such number of succeeding financial year in such manner as may be provided। तो यहाँ पे अगर कंपनी ने ज़्यादा खर्चा किया है तो कंपनी को सेट ऑफ का भी बेनिफिट दिया गया है, तो कंपनी जो एक्सेस अमाउंट है उसको सेट ऑफ कर सकता है। आप देखो ये कैसे कर सकते हैं, लेट्स टेक दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ क्या लिखा है दैट इफ द कंपनी स्पेंड एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट, तो कंपनी ने अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खर्चा किया, देन सच कंपनी में सेट ऑफ द एक्सेस अमाउंट, जो खर्चा एक्स्ट्रा किया है अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट, may set off such excess amount against the requirement to spend CSR for such number of succeeding financial year, मतलब फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर में उसको सेट ऑफ कर सकते हैं एंड इन सच मैनर एज स्पेसिफाइड। अब यहाँ पे क्या लिखा है, तो अगर हम लोग एग्जांपल 1 को ही कैरी फॉरवर्ड करें जहाँ पे हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया था कि कितना खर्चा करना है। अब नाउ फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 कंपनी को CSR खर्चा करना था 8,66,667। क्लियर। मान लो कंपनी ने खर्चा किया 10 लाख रुपए का, तो इसका मतलब कंपनी ने एक्सेस कितना खर्चा किया 1,33,333। तो ये जो 1,33,333 है उसको कंपनी फ्यूचर ईयर्स में सेट ऑफ कर सकता है। अच्छा कितने फ्यूचर ईयर्स में, 3 ईयर्स में। तो कंपनी में सेट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट इन नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2021, 21-22 एंड 22-23। क्लियर। तो इसका मतलब अगर मान लो मैं 2021 में देखूं तो 2021 में कंपनी को CSR एक्सपेंस कितना करना था 13,33,334। उसमें से कंपनी अगर सेट ऑफ को अगर एडजस्ट करना चाहे तो 1,33,333 माइनस कर दिया तो कंपनी को उस साल फाइनेंशियल ईयर में खर्चा कितना करना पड़ेगा 12,01 रुपए का, क्योंकि कंपनी ने सेट ऑफ ले लिया। इसका मतलब यहाँ पे अगर आपने कम खर्चा किया तो आपको उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, 3 साल के लिए यूज़ करना पड़ेगा, और ज़्यादा खर्चा किया तो उसको आप सेट ऑफ ले सकते हो। अगेन ये सेट ऑफ लेना है या नहीं लेना है ये कंपनी डिसाइड करेगा। क्लियर। नाउ व्हाट इज बीइंग सेड, तो यहाँ पे ये अमेंडमेंट जो है ये इंसर्ट किया गया है that in case of companies which spend an amount in excess of required 2% will be allowed to set off such excess out of their obligation to spend such number of succeeding financial year as prescribed in CSR rules। आप देखो यहाँ पे अनदर अमेंडमेंट जो है वो बात करता है that 135 सबसेक्शन 9 की। अब 135 सबसेक्शन 9 क्या बोल रहा है, नाउ वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंड बाय द कंपनी अंडर 135 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनी दैट 13 डज नॉट एक्सीड 50 lakhs। तो अगर ये खर्चा 50 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है, then the requirement of constituting the CSR committee shall not be applicable and function of such committee and provided under this section in such case to be discharged by the board of director in such company। मतलब यहाँ पे अगर CSR का खर्चा 50 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है तो कंपनी को CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड दैट वो फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप देखो तो यहाँ पे what is being said that now this is also we have covered with the help of example। now see this thing now
नाउ व्हाट इज बीइंग सेड, इफ यू सी सब सेक्शन मतलब पॉइंट 6 क्या लिखा है, तो यहाँ पे एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 9 where the amount to be spent by the company under 135(5) does not exceed 50 lakhs, तो ये 50 लाख तो क्रॉस नहीं कर रहा. The requirement under subsection 1 for constitution of CSR committee shall not be applicable, तो CSR committee constitute करने की जरूरत नहीं है. And the function of such committee shall in such case be discharged by the board of directors of such company, तो वो फंक्शन जो है वो बोर्ड ही परफॉर्म करेगा. तो यहाँ पे अब अगर हमने जो CSR एग्जाम्पल लिया था उसमें कंपनी को कितना CSR खर्चा करना था, 13,33,000, 8,66,000, 9 लाख. तो यहाँ पे हर एक कंडीशन देखा जाए तो ये 50 लाख से कम है, तो कंपनी को CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है. एंड फंक्शन ऑफ सच CSR कमेटी shall be performed by the board of directors. Clear? So this is the amendment. Each year का अपने को देखना है यहाँ पे कि अगर 50 लाख से कम है तो CSR कमेटी नहीं कॉन्स्टिट्यूट करना, सिर्फ CSR करना है. लेकिन CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना है कि नहीं करना है, इसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि अपने को CSR कितना करना है. अगर 50 लाख से कम है तो बोर्ड डायरेक्टली करेगा, उसके लिए CSR कमेटी सेपरेटली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. अब देखो, अब यहाँ पे CSR का रूल स्पेसिफाई किया गया है. अब फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दो दिस रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाउ यू नीड नॉट टू रीड all the part, but yes there are certain part 100% you have to read. So वो कौन कौन से parts हैं, that's something you have to understand. ना यहाँ पे क्या लिखा है that now administrative overhead क्या होता है. Now when we talk about administrative overhead, it basically means कि हम लोग अगर CSR कर रहे हैं तो आपका administrative overhead 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए of the amount that need to be spent towards CSR. तो यहाँ पे क्या लिखा है, administrative overhead means expenses incurred by company for general management and administration of CSR function in the company. मतलब यहाँ पे जनरल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है CSR के लिए that is called administrative overhead. मतलब that is the expense जो आप incur कर रहे हो for general management and administration for CSR function. Now but shall not include the expense directly incurred for designing, implementing, monitoring and evaluation of particular CSR project or program. लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, फॉर एनी एक्सपेंस इनकर्ड फॉर, अगर आप कोई खर्चा करते हो फॉर डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ पर्टिकुलर CSR प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे अगर पर्टिकुलर CSR प्रोजेक्ट के लिए इफ़ नाउ व्हाट इज़ बीइंग सेड दैट अगर पर्टिकुलर CSR प्रोजेक्ट के लिए अगर कुछ डिज़ाइनिंग, मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटेशन किया है तो यहाँ पे दैट इज़ वेयर इट्स नॉट टू बी कंसिडर्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. नाउ फर्दर क्या दिया है, और इसके बाद आप देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट, दिस इज क्रूशियल. तो यहाँ पे आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये वाली डेफिनेशन जरूर पढ़ना फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देन नेट प्रॉफिट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. अब ये नेट प्रॉफिट क्या बोलता है ना, यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे हैं एवरेज नेट प्रॉफिट का, उसका 2% निकालना है टूवर्ड्स CSR एक्टिविटी, तो ये नेट प्रॉफिट कौन सा है, क्या ये कंपनी का प्रॉफिट है. तो यहाँ पे कैसे निकालना है, इसमें कुछ चीज़ों को एडजस्टमेंट किया जाता है. तो वो एडजस्टमेंट क्या है, इट सेज दैट नेट प्रॉफिट मीन्स द नेट प्रॉफिट कंपनी एज पर the financial statement prepared in accordance with the applicable provisions of that, but shall not include the following. किसको include नहीं किया गया है, पहला any profit arising from overseas branch or branches of company whether operated as a separate company or otherwise. मतलब अगर separate company और otherwise अगर आपको overseas branch या सब्सिडरी से कुछ प्रॉफिट मिलता है तो उसको नेट प्रॉफिट में ऐड नहीं करना है. दूसरा,
एनी डिविडेंड, अगर कंपनी को कोई भी डिविडेंड मिला है, सो एनी डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अदर कंपनीज इन इंडिया, मतलब अगर इंडिया की किसी और कंपनी से अगर अपने को डिविडेंड मिला है विच इज़ कवर्ड अंडर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन 135। आप देखो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसी कंपनी जो 135 में कवर्ड है और जो 135 को कंप्लाई भी कर रहा है, तो अगर उस कंपनी से डिविडेंड मिला है तो नेट प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब अदर वे राउंड क्या हुआ कि अगर एक कंपनी 135 में कवर्ड ही नहीं है, उसका डिविडेंड मिला तो वो नेट प्रॉफिट में इंक्लूड होगा। अच्छा, ऐसी कंपनी जो 135 में कवर्ड तो है लेकिन वो 135 के रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं कर रहा है, अगर उस कंपनी ने डिविडेंड दिया तो भी आपके नेट प्रॉफिट में इंक्लूड किया जाएगा। नाउ प्रोवाइडेड दैट in case of foreign company covered under this rule, net profit means the net profit of such company as per profit and loss account prepared under section 381 read with 198। तो अगर यहाँ पे हम लोग फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हैं तो फॉरेन कंपनी को जो प्रॉफिट उसने जनरेट किया है फ्रॉम देयर इंडिया ऑपरेशन, उसका नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा एज पर सेक्शन 381 रेड विद सेक्शन 198। अब इसके अलावा अभी उन्होंने पढ़ा था कि अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मींस मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट जो एक साल में ख़त्म नहीं होता, ऐसा प्रोजेक्ट जो मल्टी ईयर कई ईयर्स तक चलेगा, अंडरटेकन बाय द कंपनी इन फुलफिलमेंट ऑफ इट्स CSR ऑब्लिगेशन हैविंग टाइमलाइंस नॉट एक्सीडिंग 3 years एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट हैज़ कमेंस। तो यहाँ पे कितने पीरियड तक का दिया गया है, जिस फाइनेंशियल में चालू हुआ है दैट ईयर प्लस 3 more years, एंड शैल इंक्लूड सच प्रोजेक्ट दैट वाज इनिशियली नॉट अप्रूव्ड एज मल्टी ईयर प्रोजेक्ट। नाउ such project which was initially not approved as a multi-year project but whose duration has extended beyond 1 year by the board based on reasonable justification। अच्छा, अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसको आइडियली कंप्लीट करना था एक साल में, बट इवेंचुअली बोर्ड रियलाइज कि एक साल में कंप्लीट नहीं हो सकता, तो उसको भी आप मल्टी ईयर प्रोजेक्ट के रूप में बोर्ड उसको कंफर्म कर सकता है। क्लियर? नाउ सो दिस इज द अनदर थिंग दैट व्हाट यू हैव टू रीड। नाउ अब इसमें what is being said that अब यहाँ पे what is being said, अब देखो now every entity covered under sub-rule 1 who intend to undertake any CSR activity shall register itself with central government by filing form CSR1 electronically with registrar with effect from 1st April 2021। तो अगर कोई भी कंपनी है जो CSR करना चाहता है या CSR करना उसके लिए मैंडेटरी है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर करना पड़ेगा बाय फाइलिंग फॉर्म CSR1। नाउ प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सब रूल shall not affect the CSR project approved prior to 1st April 2021। मतलब अगर कोई CSR प्रोजेक्ट कंपनी ने पहले किया, अप्रूव किया है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये प्योरली क्यों लाया गया, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम पड़े कि कौन सी कंपनी CSR में क्या कर रहा है। नाउ अब ये फॉर्म CSR1 जो है, now it shall be signed and submitted electronically by the entity and shall be verified digitally by chartered accountant in practice, company secretary in practice or cost accountant in practice। Now on the submission of form CSR1 on the portal, a unique CSR registration number shall be generated by the system automatically। तो जब आप CSR1 फाइल करोगे तो एक नंबर जनरेट होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड कंपनी may engage international organization for designing, monitoring and evaluation of CSR project or program as per its CSR policy as well as capacity building for their own personnel for CSR। मतलब कंपनी यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंगेज कर सकता है अपनी CSR प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, एज वेल एज इट्स CSR पॉलिसी। नाउ
एज पर इट्स CSR पॉलिसी, एंड अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकता है, अपने पर्सनल्स को ट्रेन कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ CSR। नाउ फर्दर क्या दिया है, अ कंपनी मे ऑल्सो कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज फॉर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स or programs on CSR activity in such manner that the CSR committee of respective companies are in position to report separately on such project in accordance with the rule। इसका मतलब अगर मान लो कंपनी आज कंपनी ए, रिलायंस, टाटाज अगर मिल के CSR करना चाहें तो कर सकते हैं। कंडीशन बस ये है कि उनकी जो रेस्पेक्टिव CSR कमेटी है वो ये बाइफरकेट कर पाए कि कंपनी ने कितना खर्चा किया है टूवर्ड CSR। नाउ the board of the company shall satisfy itself that the funds so disbursed have been utilized for the purpose and in the manner as approved by it, and the chief financial officer person responsible for financial management shall certify to the effect। मतलब यहाँ पे एक जो कंपनी का CFO है, जो कंपनी का फाइनेंस हेड है, वो इस चीज़ को सर्टिफाई करेगा कि CSR का फंड किस तरीके से स्पेंड किया गया है, एंड वो उसी तरीके से स्पेंड किया गया जैसा CSR पॉलिसी में एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ में लिखा हुआ है। नाउ इन केस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, द बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट with reference to the approved timelines and year-wise allocation and shall be competent to make modification if any for smooth implementation of project within the overall permissible time period। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप CSR फंड में किस तरीके से आप खर्चा करोगे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है उसमें बोर्ड मॉनिटर करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए विद रेफरेंस टू द अप्रूव टाइमलाइंस। तो एक अप्रूव टाइमलाइंस के साथ बोर्ड उसको अप्रूव करेगा कि 3 साल के अंदर कंप्लीट होने जाना चाहिए। तो जिस साल चालू हुआ है प्लस 3 ईयर्स, तो किस ईयर में कितना काम किया जाएगा उसको बोर्ड अप्रूव करेगा, एंड ईयर वाइज एलोकेशन किया जाएगा। और इसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं फॉर द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर? सो दिस इज समथिंग इज क्रूशल। अब देखिए ना यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड नाउ CSR एक्सपेंडिचर जो है इसमें दो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड 135 सबसेक्शन 5। इसमें क्या लिखा है, द बोर्ड एंश्योर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड shall not exceed 5% of total CSR expenditure of the company for the financial year। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है वो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो जो CSR फंड है उसका 5%। नाउ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट कि अगर कुछ सरप्लस है तो उसको नेक्स्ट 3 साल में एडजस्ट कर सकते हैं। सो वेयर द कंपनी स्पेंड अ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट देन सच एक्सेस शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट up to immediate succeeding 3 financial year, subject to condition that the excess amount available for set off shall not include the surplus arising out of CSR activity if any। Now second, the board shall pass a resolution to this effect। मतलब बोर्ड यहाँ पे रिजोल्यूशन पास करेगा और जो भी एक्सेस अमाउंट है ना, जो भी एक्सेस अमाउंट है available for set off shall not include the surplus arising out of CSR activity। तो अगर कुछ CSR एक्टिविटी से कुछ सरप्लस जनरेट हुआ है तो वो एक्सेस अमाउंट नहीं माना जाएगा, वो तो वो खर्चा करना है जो कंपनी ने पाक किया था उसमें से कम खर्चा हुआ है या उसमें से अगर ज़्यादा खर्चा किया है तो उसको सरप्लस माना जाएगा। नाउ एनी सरप्लस अराइजिंग ऑफ CSR एक्टिविटीज शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। तो अगर कोई भी आपने CSR किया उसमें मान लो आपको कोई डोनेशन मिल गया तो क्या डोनेशन कंपनी का प्रॉफिट मान लिया जाएगा? आंसर इज नो। एंड शैल बी प्लॉट बैक इनटू द सेम प्रोजेक्ट और शैल बी ट्रांसफर टू अनस्पेंड CSR। मतलब तो उस जो अगर सरप्लस कोई डोनेशन कुछ एक्स्ट्रा रिसिप्ट मिला है तो वो कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, तो वो कंपनी के प्रॉफिट में नहीं जाएगा, वो उसी प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाएगा या तो CSR फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे, अनस्पेंड CSR अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड स्पेंड इन पर्सन CSR पॉलिसी एंड एनुअल एक्शन प्लान ऑफ कंपनी और ट्रांसफर सच फंड टू द फंड स्पेसिफाइड शेड्यूल 7 विद इन 6 months फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर कुछ एक्स्ट्रा जनरेट होता है CSR एक्टिविटी से तो वो एक्स्ट्रा
कंपनी का प्रॉफिट नहीं है उसको उसी प्रोजेक्ट की तरफ इन्वेस्ट किया जाएगा. क्लियर? नाउ so this is something what is crucial from exam point of view. now further क्या दिया है? अब देखो, अब यहाँ पे CSR रिपोर्टिंग में क्या बोला है? now CSR reporting basically says that the board of directors of company covered under the rules pertaining to any financial year shall include an annual report on CSR containing particulars specified in Annexure 1. तो यहाँ पे बोर्ड डायरेक्टर्स रिपोर्ट में एक CSR का एक कॉलम होगा, तो उसको कंपनी को सेपरेटली कवर करना पड़ेगा दैट एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR की कंपनी ने CSR की तरफ क्या एक्टिविटी किया है. Now in case of foreign company, the balance sheet filed shall contain an annual report on CSR containing particulars. मतलब सिंपल वर्ड्स में आपको एक एनुअल रिपोर्ट ऑफ CSR भी प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसमें आप ये बताओगे कि कंपनी ने CSR की तरफ क्या क्या एक्टिविटी किया है. नाउ मतलब वो कंपनी जिनको CSR करना है उनको एक एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR भी प्रोवाइड करना पड़ेगा अलॉन्ग विद डायरेक्टर्स रिपोर्ट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर किसी कंपनी का CSR ऑब्लिगेशन अगर 10 करोड़ और मोर है तो उनको एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि वो जो CSR की तरफ खर्चा कर रहे हैं क्या उससे जो डिजायर्ड बेनिफिट जनरेट होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो क्या लिखा है? एवरी कंपनी हैविंग एवरेज CSR ऑब्लिगेशन ऑफ 10 करोड़ और मोर in pursuance of 135(5) in the 3 immediately preceding financial year shall undertake impact assessment. वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको एक impact assessment करना पड़ेगा जिसमें आप ये देख रहे हो कि भाई CSR का क्या इफेक्ट आया है, क्या आपने जिस डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव से CSR किया वो अचीव हुआ या नहीं हुआ. थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ देयर CSR प्रोजेक्ट हैविंग आउटले ऑफ 1 करोड़ और मोर and which have been completed not less than 1 year before undertaking the impact study. मतलब यहाँ पे they can always hire an independent agency and for their CSR project having outlay of 1 करोड़ और more. इसका मतलब अगर एवरेज आपका CSR ऑब्लिगेशन अगर 10 करोड़ और मोर है तो वहाँ पे कंपनी को एक इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा एंड ये इम्पैक्ट असेसमेंट कंपनी कर सकता है थ्रू इंडिपेंडेंट एजेंसी जिसमें ये इवैल्यूएट किया जाता है कि CSR का डिजायर्ड बेनिफिट जनरेट हुआ या नहीं हुआ. अभी जो इम्पैक्ट असेसमेंट है, नाउ रिपोर्ट शैल बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड एंड शैल बी अनेक्स टू द एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR. तो इसको एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR के साथ अनेक्स किया जाएगा और इसको बोर्ड के सामने प्लेस किया जाएगा. फर्दर द कंपनी अंडरटेक इम्पैक्ट असेसमेंट मे बुक द एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स CSR for that financial year which shall not exceed 5% of the total CSR expenditure for that financial year or 50 lakh whichever is lower. इसका मतलब अगर कंपनी इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहा है तो उस पर जो भी खर्चा आएगा उसको भी CSR के एक्सपेंस में बुक कर सकते हैं. वो 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए और 50 lakhs whichever is lesser. ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये कि ये जानना भी जरूरी है कि अगर आप खर्चा कर रहे हो CSR की तरफ तो यहाँ पे क्या उस खर्चे से डिजायर्ड बेनिफिट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है. अब देखो लास्ट 2 थिंग्स. नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल मैंडेटरली डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी, CSR पॉलिसी, प्रोजेक्ट अप्रूव बाय द बोर्ड ऑन देयर वेबसाइट फॉर पब्लिक एक्सेस. नाउ आपको कंपनी के डिस्क्लोजर देना पड़ेगा वेबसाइट पे विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग पर्टेनिंग टू CSR, जैसे कि CSR कमेटी क्या है, कौन कौन से पर्सन है CSR कमेटी में, CSR प्रोजेक्ट क्या है कंपनी का, CSR पॉलिसी क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट को बोर्ड ने अप्रूव किया है, एवरीथिंग. नाउ what is being said that until the fund is specified in Schedule 7 for the purpose of 5 or 6, the unspent CSR amount, if any, shall be transferred the company to the fund including Schedule 7. Now what is being said कि यहाँ पे जो भी अनस्पेंड CSR अमाउंट है उसको कंपनी फंड में ट्रांसफ़र करेगा. कौन से फंड में?
जो स्केड्यूल 7 में फंड स्पेसिफाई किया है। अच्छा, इसके बाद हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेपरेट फंड स्पेसिफाई करे तो फिर उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। नाउ अब यहाँ पे दो क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू CSR। एक है क्लैरिफिकेशन ऑफ spending CSR fund of setting up makeshift hospital and temporary COVID care facility। अब अगर कंपनीज ने CSR का खर्चा किया है, CSR का फंड स्पेंड किया है टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग टेम्परेरी कोविड केयर फैसिलिटी, तो बहुत सारे कोविड केयर सेंटर्स क्रिएट किए गए, तो उस पर जो खर्चा हुआ अगर कंपनी ने, कॉर्पोरेट ने खर्चा किया है, तो क्या वो CSR में उसको क्लेम कर सकते हैं? So in continuation of General Circular number 2020 dated March 20, wherein it was clarified that spending of CSR fund for COVID-19 is eligible CSR activity, the MCF further clarified that CSR fund for setting up makeshift hospital or temporary COVID care is an eligible CSR activity relating to promotion of health care including preventive care and disaster management respectively। मतलब अगर corporates ने खर्चा किया है towards providing कोविड केयर फैसिलिटी और उसमें जो भी खर्चा किया है उसको भी CSR एक्सपेंडिचर में कवर किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड नाउ फर्दर, ना यहाँ पे क्या बोला गया? नो क्लैरिफिकेशन, नो क्या क्लैरिफिकेशन दिया है? For creating health infrastructure for COVID cares, establishment of medical oxygen generation and storage plant। आप देखो ये क्या है ना, यहाँ पे जब इंडिया ने सेकेंड वेव एक्सपीरियंस किया जहाँ पे ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई थी, अ लॉट ऑफ पेशेंट डाइड बिकॉज द ऑक्सीजन टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाया, तो यहाँ पे अगर कॉर्पोरेट इसकी तरफ खर्चा करते हैं, स्पेंड करते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किया जाए, सो वहाँ पे अगर वो खर्चा किया गया तो उसको भी CSR एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाएगा। तो क्या लिखा है? इन कंटिन्यूएशन ऑफ जनरल सर्कुलर नंबर dated March 23, 2020, wherein it was clarified that spending of CSR fund is an eligible CSR activity, the MC has further clarified that spending of CSR fund for creating health infrastructure for COVID care, establishment of medical oxygen generation and storage plant, manufacturing and supply of oxygen concentrator, ventilators, cylinders and other medical equipment for countering COVID-19 or similar such activities are eligible CSR activity relating to promotion of healthcare including preventive healthcare and disaster management respectively। मतलब अगर इसके ऊपर कुछ भी खर्चा किया गया है तो ये सब CSR में काउंट किया जाएगा। क्लियर? नाउ which means that any expenses incurred towards COVID has been classified under CSR expenditure। Clear? So these are the amendment pertaining to CSR। So let's move to the next amendment। आप देखो now यहाँ पे now what has been said, यहाँ पे सेक्शन 129A इंसर्ट किया गया अकाउंट्स एंड ऑडिट में। ना इसमें क्या लिखा है? दैट अ न्यू सेक्शन 129A हैज़ बीन इंसर्टेड to empower the central government to provide by rules such class of unlisted company to prepare periodic financial result of the company, audit or limited review thereof and their filing with the registrar within 30 days of completion of the relevant period as specified in the rules। मतलब अब यहाँ पे what has been said that एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया विच इज़ 129A, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अनलिस्टेड कंपनीज को, सच क्लास ऑफ कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा, नाउ दे हैव टू प्रिपेयर द पीरियोडिक फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड सी ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट से भी रेगुलेशन के हिसाब से आपका क्वार्टरली प्रिपेयर होता है, बट अनलिस्टेड कंपनी का क्या? एंड दैट इज़ वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड दैट बाय इंसर्टिंग न्यू सेक्शन 129A whereby it has been said that periodic financial result सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम करेगा
जिसमें अनलिस्टेड कंपनी को पीरियोडिक फाइनेंशियल रिजल्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड दे हैव टू फाइल द सेम विद ROC within 30 days of completion of relevant financial period. Clear? Now so this is one amendment that have to be studied under this chapter. इसके बाद now बस अकाउंट्स ऑडिट में सिर्फ वो एक अमेंडमेंट काम का है. इसके बाद what has been specified, no this is not very relevant. हाँ, अब यहाँ पे आइए. नाउ ओवरव्यू ऑफ कॉर्पोरेट रिऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक अमेंडमेंट काम का है. अब वो अमेंडमेंट क्या है? नाउ सेक्शन 233 जो है, नाउ 233 किन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है? नाइट इज द फास्ट ट्रैक मर्जर. तो फास्ट ट्रैक मर्जर किन के लिए होता है? 2 or more small companies, holding company and wholly owned subsidiary company, and लिखा था such other class of company as may be prescribed. तो वो other class of company as may be prescribed को प्रिस्क्राइब कर दिया गया है. तो यहाँ पे क्या लिखा है? A scheme of merger amalgamation under section 233 may be entered between any of the following class of companies, namely 2 or more startup companies or 1 or more startup company with 1 or more small company. तो यहाँ पे स्टार्टअप कंपनी क्या है? मीन्स अ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज आर 13 और 56 एंड रिकॉग्नाइज एज सच इन अकॉर्डेंस द नोटिफिकेशन इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर 2 और मोर स्टार्टअप कंपनी का एमलगमेशन होगा दैट कैन बी डन थ्रू फास्ट ट्रैक मर्जर, और 1 और मोर स्टार्टअप कंपनी विद 1 और मोर स्मॉल कंपनी का उसका मर्जर होता है, दैट कैन ऑल्सो बी डन थ्रू फास्ट ट्रैक मर्जर. तो यहाँ पे सो द नोटिफिकेशन हैज अमेंडेड रूल 25 allowing scheme of merger amalgamation under section 233, that is fast track merger, through relatively simpler procedure between any of the following classes of companies, namely 2 or more startup company or now or 1 or more startup company with 1 or more small companies. Now this is something is the amendment which is pertaining to फास्ट ट्रैक मर्जर का. ना ये अमेंडमेंट इशू किया है. अब देखिए, सो ये एक अमेंडमेंट है जो कि इस चैप्टर में रेलेवेंट है. इसके अलावा now there is a पेनल्टी अमेंडमेंट, नॉट वेरी रेलेवेंट बट बता देता हूँ. अब इसमें क्या लिखा है कि यहाँ पे सेक्शन 247 में जो कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर का सेक्शन है, वहाँ पे पेनल्टी क्लॉज को चेंज किया गया है. इसमें लिखा है कि इफ़ द वैल्यूअर कॉन्ट्रावेंस सेक्शन 247 और रूल्स मेड देयर अंडर देन द वैल्यूअर शैल बी लायबल फॉर पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज़. जो कि पहले जो था वो पेनल्टी 25,000 से लेके 1 लाख था, उसको सीधे एक पेनल्टी बता दिया गया, दैट पेनल्टी विल बी 50,000 रुपीज़. नाउ अब इसके अलावा MCA 21 चैप्टर में कोई खास अमेंडमेंट नहीं है. नाउ अब यहाँ पे अब एक पार्ट बस ये याद रखना, देयर इज समथिंग कॉल्ड STP, दैट इज कॉल्ड स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग. तो आप स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग में कंपनी जो भी फॉर्म फाइल करता है वो डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट अप्रूव्ड हो जाता है, एंड देन इवेंचुअली बाद में MCA उसको बाद में चेक करता है, और अगर कुछ क्वेरी होती है तो दे कैन ऑलवेज रेज द इंक्वायरी, तो क्वेरी रेज कर सकता है. अब यहाँ पे क्या लिखा है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर. तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट has established a central scrutiny center for carrying out scrutiny of straight through processing e-form. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर क्रिएट किया है, वो उन फॉर्म्स को चेक करेगा जो STP मोड से फाइल होते हैं.
filed with the company under company the 13 and rules made thereunder which comes effective from 23rd March 2021. Now यहाँ पे जो सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर्स हैं shall function under the administrative control of e-governance cell of Ministry of Corporate Affairs. तो ये MCA के अंडर e-governance cell के अंदर काम करेंगे. Second, it shall carry out scrutiny of aforesaid forms and forward finding thereupon wherever required to the concerned jurisdictional ROC for further necessary action under the provision of company that 13. अब देखो यहाँ पे अगर आप STP में क्या होता है कि आपने फॉर्म फाइल किया, फॉर्म अप्रूव हो गया. अब यहाँ पे सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर उसको चेक करेगा और अगर कुछ पॉइंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, तो कंसर्न ROC के साथ शेयर किया जाएगा एंड देन ROC विल इशू नोटिस. Now it is located, ये कहाँ पे लोकेटेड है? So it is located at Indian Institute of Corporate Affairs, मानेसर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा. अब यहाँ पे ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है ना, ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? अगर आपको डायरेक्टर्स चैप्टर याद होगा तो डायरेक्टर्स में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटाबेस क्रिएट करने की जो अथॉरिटी है ना, दैट इज समथिंग दैट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. क्लियर? So this is something is one part. Now बस इतना ही है, कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, एक रीडिंग आप कर सकते हैं. Now अब यहाँ पे देखिए, अब ये इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है ना, दो बहुत ज़्यादा नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है. अब क्या है इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट? देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि स्केड्यूल 5 जो होता है वो एप्लीकेबल होता है फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल, MD WTD मैनेजर. लेकिन अब इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है एंड दैट इज़ वेयर स्केड्यूल 5 अगर कंपनी में नो प्रॉफिट है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो कंपनी जो रेम्यूनरेशन देता है अपने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज कमीशन के फॉर्म में, अगर कंपनी अपने NED को कुछ पेमेंट करना चाहता है, ID को कुछ पेमेंट करना चाहता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, देन इट विल ऑल्सो बी पेड एज पर स्केड्यूल 5. तो यहाँ पे क्या लिखा है? नाउ इट सेज दैट नाउ इन स्केड्यूल 5 इन पार्ट सेकेंड अंडर द हेडिंग रेम्यूनरेशन इन सेक्शन 1, तो यहाँ पे तो सेक्शन 1 जो है वो बात करता है कि कंपनी हैविंग एडिक्वेट प्रॉफिट. तो कंपनी के पास अगर एडिक्वेट प्रॉफिट है तो यहाँ पे क्या लिखा है? आफ्टर द वर्ड मैनेजर पर्सन और पर्सन द वर्ड अदर डायरेक्टर्स हैव बीन इंसर्टेड. अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो अगर हम लोग जो पहला अमेंडमेंट है वो है सेक्शन 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 5. अब ये है क्या? पहला स्केड्यूल 5 जो एप्लीकेबल था वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए, लेकिन अब स्केड्यूल 5 जो है वो एप्लीकेबल है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मतलब MD WTD मैनेजर के लिए, उसके अलावा NEDs एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए. तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इट सेज दैट अमेंडेड स्केड्यूल सेक्शन 1 क्या बोलता है? दैट रेम्यूनरेशन पेबल बाय कंपनी हैविंग प्रॉफिट. तो हम लोग किस कंपनी की बात कर रहे हैं? उन कंपनीज के पास जिसके पास एडिक्वेट प्रॉफिट है. Now subject to the provision of section 197, a company having profit in any financial year may pay remuneration to a manager personnel और मतलब कंपनी अपने मैनेजर पर्सनल को पेमेंट कर सकता है. कितना पेमेंट कर सकता है ना? ये निकलता है सेक्शन 197 से, जिसमें अगर कंपनी में एक मैनेजर पर्सनल है तो 5% नेट प्रॉफिट, और अगर एक से ऊपर है तो 10% नेट प्रॉफिट. और नाउ व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड दैट पर्सन और अदर डायरेक्टर्स, तो यहाँ पे और पर्सन और अदर डायरेक्टर्स नॉट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड इन सच सेक्शन. अब देखो यहाँ पे अदर डायरेक्टर मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? NED की. तो NED की लिमिट कितनी है ना? NED की लिमिट है कि अगर कंपनी NED को पेमेंट कर रहा है तो अगर कंपनी में MD WTD मैनेजर है तो 1% नेट प्रॉफिट, और अगर कंपनी में MD WTD मैनेजर नहीं है तो 3% ऑफ नेट प्रॉफिट. इसका मतलब ये जो पार्ट है इसको भी स्केड्यूल 5 से कनेक्ट कर दिया. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ दिस इज योर सेकेंड पार्ट, सेक्शन 2.
यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर द वर्ड मैनेजरल पर्सन wherever occurred the word other director have been inserted, मतलब जहाँ पे भी मैनेजरल पर्सनल लिखा था जो कि एमडी डब्ल्यूटी मैनेजर की बात करता है, वहाँ पे अदर डायरेक्टर वर्ड को भी इंक्लूड किया गया जिसमें एनईडी इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कवर हो जाता है। और अब ये जो टेबल है, अब ये टेबल में क्या चेंज हुआ ना, पहले शेड्यूल 5 का जो टेबल था विच इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल, उससे हम लोग रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करते थे ओनली फॉर मैनेजर पर्सनल, बट अब हम लोग शेड्यूल 5 के टेबल से विल कैलकुलेट द रेम्यूनरेशन फॉर एनईडी ऑल्सो इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आप हर एक पर्सन को, ईच मैनेजर पर्सनल को कितना पेमेंट कर सकते हो, अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है तो 60 लैक्स, अगर इफेक्टिव कैपिटल लेस देन 5 करोड़ है तो 60 लैक्स, अगर इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ एंड मोर है बट लेस देन 100 करोड़ है तो 84 लैक्स। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट था ना निगेटिव और लेस देन, तो ये एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड होता है कि अगर निगेटिव है तो भी 60 लैक्स, ये पर एनम है, याद रखना ये पर एनम का रेम्यूनरेशन है और ये ईच का है, मतलब हर एक को आप कितना पे कर सकते हो। अच्छा, अगर इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से कम है तो लिमिट कितना है 60 लैक्स, अगर इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ और मोर है बट लेस देन 100 करोड़ है तो लिमिट कितना है 84 लैक्स, अगर इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ से मोर है बट लेस देन 250 करोड़ है तो लिमिट कितना है 120 लैक्स, मतलब 1.2 CR, और अगर इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ से अबव है तो लिमिट कितना है 120 लैक्स प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल बियॉन्ड 250 करोड़। अब यहाँ पे दिस इज समथिंग, सो दिस पार्ट इज फॉर एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर। अब जो सेकेंड पार्ट आया है ना, दैट इज बेसिकली फॉर एनईडी इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब देखो तो ईच एनईडी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना पेमेंट कर सकते हैं, तो अगर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है तो 12 लैक्स पर एनम, अगर इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से कम है तो 12 लैक्स पर एनम, अगर इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ एंड मोर है बट लेस देन 100 करोड़ है तो 17 लैक्स पर एनम, अगर इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ एंड मोर है बट लेस देन 250 करोड़ है तो 24 लैक्स पर एनम, और अगर इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ से अबव है तो कितना आएगा, तो इट इज़ 24 लैक्स पर एनम प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। सो दिस इज समथिंग, इस अमेंडमेंट विच कैन बी प्रोवाइडेड इन दिस मैनर। तो यहाँ पे पर एनम है एनईडी के लिए, तो इफेक्टिव कैपिटल निगेटिव तो 12 लैक्स, लेस देन 5 करोड़ 12 लैक्स, 5 करोड़ से अबव बट लेस देन 100 करोड़ 17 लैक्स, 100 करोड़ से अबव बट लेस देन 250 करोड़ 24 लैक्स, एंड 250 करोड़ से अबव तो 24 लैक्स प्लस 0.01% इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। क्लियर? तो दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है जो अपने को पता होना ही चाहिए। बस कंपनीज एक्ट में CSR इंपॉर्टेंट है जो मेजर अमेंडमेंट है फॉर दिस अटेम्प्ट एंड दिस पार्ट। नाउ this entire thing अब देखो ना, यहाँ पे अब जब स्केड्यूल 5 में चेंज हुआ तो 197 में भी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हुआ है। अब 197 का चेंज क्या है, तो यहाँ पे व्हाट हैज बीन स्पेसिफाइड, तो अभी मुझे जो पढ़ा है उसमें क्या है कि विद दिस अमेंडमेंट द एमसी हैज अमेंडेड शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट pertaining to remuneration by inserting the provision with respect to maximum limit of remuneration payable by company to other director, NED or an independent director. Earlier the limit was only for managerial person. Clear? अब देखो अब फर्दर क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पे
अगेन कंपनी में नाउ 149 सबसेक्शन 9 में क्या दिया है दैट इफ द कंपनी हैज नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, so if a company has no profit or inadequate profit, an independent director may receive remuneration exclusive of any fees payable under subsection 5 of section 197 in accordance with schedule 5. अब तो क्या लिखा है यहाँ पे, तो अगर कंपनी में नो प्रॉफिट है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आप कितना पेमेंट कर सकते हो एज पर स्केड्यूल 5. मतलब यहाँ पे और कितना पेमेंट कर सकते हैं स्केड्यूल 5 देखेंगे तो वो किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल. फर्दर व्हाट इज बीइंग सेड दैट notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2 but subject to provision of section schedule 5, if any financial year the company has no profit or its profit are inadequate, मतलब ये सेक्शन 197 में अमेंडमेंट किया गया जिसमें 197 सबसेक्शन 1 में ओवरऑल मैनेजर रेम्यूनरेशन की बात होता है, सबसेक्शन 2 में कंपनी में अगर प्रॉफिट है तो कितना पेमेंट कर सकते हैं. क्या बोला गया 3 में that if in any financial year the company has no profit or its profit are inadequate, the company shall not pay to its director, including any managing director, whole-time director, manager, or any other non-executive director, including an independent director, by way of remission, any sum exclusive of fees payable to director under subsection 5, except in accordance with schedule 5. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या कंपनी में नो प्रॉफिट है तो कंपनी कोई भी पेमेंट नहीं कर सकता अपने मैनेजर पर्सनल को, अदर डायरेक्टर्स को, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, एक्सेप्ट सिटिंग फीस. तो 197 सबसेक्शन 5 टॉक्स अबाउट सिटिंग फीस. तो सिटिंग फीस के अलावा कंपनी कोई पेमेंट नहीं कर सकता, और अगर कंपनी को कोई भी पेमेंट करना है तो कंपनी को स्केड्यूल 5 को कंप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे स्केड्यूल 5 को कंप्लाई करना पड़ेगा. इसका मतलब कि जो पेमेंट अगर ना सिटिंग फीस के अलावा अगर कोई भी पेमेंट करना है so company have to comply with schedule 5. Now this is something is the amendment which is crucial and relevant for your exam. Clear? Now so these are the amendment which is pertaining to the directors chapter. अब इसमें ना जनरल मीटिंग में सिर्फ एक अमेंडमेंट है, वो है सेक्शन 117 में. 117 बेसिकली बात करता है फाइलिंग ऑफ फॉर्म MGT 14. तो यहाँ पे नाउ व्हाट इज द पार्ट टॉक्स अबाउट, यहाँ पे इट सेज दैट कि जो रिक्वायरमेंट है 179 का उसमें एग्जम्पशन दिया गया है ना. पहले ही एग्जम्पशन सिर्फ बैंकिंग कंपनी को दिया जाता था बट नाउ द एग्जम्पशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड. तो एग्जम्पशन जो है वो NBFC को भी इंक्लूड कर दिया है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी इंक्लूड कर दिया है. तो इट सेज दैट इन सबसेक्शन 3 इन क्लॉज G फॉर सेकेंड प्रोवाइजो 117 द फॉलोइंग प्रोवाइजो हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड नेमली. तो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन दिस क्लॉज शैल अप्लाई in respect of resolution pass for grant loan, give guarantee or provide security in respect of loan under F of subsection 179(3) in the ordinary course of business by. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको MGT 14 का फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर लोन ग्रांट किया है, गारंटी दिया है, सिक्योरिटी दिया है. किसने? बैंकिंग कंपनी ने, एनी क्लास ऑफ NBFC ने, या तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने. अच्छा, इन लोगों को क्यों एग्जम्पशन दिया गया? लॉजिकली सोचो ना. रूल क्या बोलता है कि कंपनी ने लोन गारंटी सिक्योरिटी दिया है तो उनको ROC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा बाय फाइलिंग फॉर्म MGT 14. अब बैंकिंग कंपनी का काम क्या होता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का काम क्या होता है? उनका तो काम ही है लोन देना. तो इसका मतलब क्या बोलो, दिन भर फॉर्म ही फाइल करते रहेंगे क्या? सो दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. अच्छा, एक तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, दूसरा डोंट यू थिंक कि यहाँ पे ROC का काम कितना बढ़ जाएगा, बल्क में फॉर्म फाइल हो जाएंगे. तो यहाँ पे इन कंपनीज को एग्जम्पशन दे दी क्या, बिकॉज दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी.
Now the central government has been empowered to exempt any class of NBFC or other class of housing finance company from filing of resolution passed to grant loan or give guarantee or provide security in connection with the loan in the ordinary course of business. यहाँ पे ordinary course of business में था तो इनका एग्जाम कर दिया गया. अर्लियर सिर्फ बैंकिंग कंपनी को एग्जाम किया गया था, इसका मतलब अब NBFC एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है. नाउ दिस इज द अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू जनरल मीटिंग. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो अनफॉर्चुनेटली आपके सप्लीमेंट में कवर नहीं किया है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए ना. अमेंडमेंट है रूल 4 का. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड रूल 4 जो बेसिकली ये बात करता है कि कौन कौन से मैटर्स ऐसे होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पास नहीं कर सकते. अब यहाँ पे मतलब उन मैटर्स के लिए बोर्ड को मैंडेटरली फिजिकल तरीके से आना पड़ेगा. नाउ दैट वाज द ओरिजिनल रूल 4. तो यहाँ पे क्या लिखा था कि रूल 4 प्रिस्क्राइब दैट फॉलोइंग मैटर शैल नॉट बी डेल्ट इन एनी मीटिंग हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स. मतलब इन मैटर के लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. वो कौन कौन से मैटर थे? अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमेटी मीटिंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड इसके अलावा अगर अप्रूवल ऑफ मर्जर एमलगमेशन है तो ये 5 मैटर के लिए बोर्ड को मीटिंग ही करना पड़ेगा. वो दे कैन नॉट पास द रिजोल्यूशन बाय पार्टिसिपेटिंग इन द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. अच्छा, इवेंचुअली 2017 में एक अमेंडमेंट किया गया. अमेंडमेंट ये बोलता था कि अगर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर से अगर कोरम प्रेजेंट है तो फिर जो डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आ रहे हैं वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इसका मतलब अगर कंपनी में जो कोरम रिक्वायरमेंट है एज पर सेक्शन 174 जो कोरम रिक्वायरमेंट है, अगर वो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर से हो रहा है तो फिर बाकी डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. लेकिन ये रिक्वायरमेंट भी तभी अप्लाई होगा जब फिजिकल प्रेजेंस से कोरम कंप्लाई होना चाहिए. अब हुआ क्या, जब कोविड आया तो कोविड के बाद कंट्री वाइड लॉकडाउन लग गया, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आ गए, ट्रैवल बैन ही हो गया रहता उसे. तो वहाँ पे डायरेक्टर्स के लिए फिजिकल मूवमेंट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया. और ये ऐसे मैटर हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, प्रॉस्पेक्टस, इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैटर. एंड मार्च में लॉकडाउन आया था तो ऐसे केस में फाइनेंशियल क्लोज हो रहा था. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उन्होंने 19 मार्च 2020 से लेके 30 जून 2021 तक रूल 4 को सस्पेंड कर दिया. तो दे सेड कि इतने पीरियड तक रूल 4 सस्पेंड रहेगा. ऑलमोस्ट मोर देन 12 मंथ्स, मतलब ऑलमोस्ट 15 मंथ्स के लिए रूल 4 को सस्पेंड कर दिया गया, ये सोच के कि 15 मंथ्स में तो सिचुएशन नॉर्मलाइज हो ही जाएंगी. But we have never anticipated that situation will become bad even after that, and that too particularly in the second wave. तो जब यहाँ पे सेकेंड वेव आया और 30 जून तक ये रूल 4 सस्पेंडेड था, तो उसके बाद क्या डायरेक्टर्स का मूवमेंट फ्री कर दिया जाएगा? आंसर इज नो. तो वहाँ पे इन दैट केस क्या किया गया, 15 जून 2021 को एक अमेंडमेंट आया जिसमें पूरे के पूरे रूल 4 को ही ओमिट कर दिया गया. इसका मतलब क्या हुआ, इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ कि आज की तारीख में ऐसा कोई भी मैटर नहीं है जिसके लिए डायरेक्टर्स को फिजिकल प्रेजेंट होने की जरूरत है. एवरी मैटर कैन बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड, डिस्कस्ड बाय द बोर्ड, पार्टिसिपेटेड बाय द डायरेक्टर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. So this entire rule 4 has been omitted effective from 15th June 2021. So this is a very important amendment क्योंकि अब ये 5 मैटर ऐसे हैं जो पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप नहीं कर सकते थे. इवेंचुअली अमेंडमेंट हुआ कि अगर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर से कोरम कंप्लाई हो रहा है तो बाकी डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. लेकिन कोविड की वजह से पहले रूल 4 को सस्पेंड किया गया एंड देन इफेक्टिव फ्रॉम 15 जून 2021 रूल 4 को ओमिट ही कर दिया गया. क्लियर? So this is a very important amendment pertaining to board meeting. तो यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट. तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग
through video conferencing or other audio visual means. Other audio visual means. now इसमें rule 4 omitted with effect from 15th June 2021. Clear? बस दिस इज द इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट. मिसलेनियस एक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. क्लियर? इस अमेंडमेंट में आपको जो जो पढ़ना है वो हाईलाइट कर दिया है, मार्क कर दिया है. बस इतने ही अमेंडमेंट आपके काम के हैं और कोई अमेंडमेंट काम का नहीं है. एंड विद दिस योर अमेंडमेंट सेशन ऑफ कंपनी लॉ इज ओवर.